Hello, welcome back. Now, let's solve exercise on page number 109. Check your progress. What you have to do, you have to put a tick for the correct sentences. Translucent objects do not cast any shadow. Is it correct? No. Transparent object always they never cast any shadow. So यहाँ पे आपको क्या करना है, कट कर देना है. करेक्ट आंसर क्या है उसका? Transparent object do not cast any shadow. Now next. Shadows can be formed in absence of light. Shadows can be formed in absence of light. शैडो एब्सेंस ऑफ लाइट में कभी फॉर्म हो सकती है क्या? नहीं. शैडो कब फॉर्म होती है? जब उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होता है, राइट, गिरता है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. शैडोज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन द presence of light. Light is a form of energy. Light is a form of energy. That's true. The size of our shadow during the day depends on where we stand in the open. The size of our shadow during the day depends upon where we stand in the open. Yes, उसको टिक कर दो. It's correct. Okay. Now we are moving to the next part, that is shadow formation in the day and night. Shadow कैसे कैसे form होती है morning में और night में. During the day, the length of our shadow changes according to the position of the sun in the sky. During the day, अब day है तो उसमें क्या है? Day हम कब कहेंगे? When there is a sun in the sky, right? So during the day, the length of our shadow, length, लंबाई, length of our shadow changes according to the position of the sun in the sky. The shadow is long in the morning and in the evening as the sun is near the horizon at that times. अभी देखो वो हॉरिजन के नियर है. जब ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट के पास में है तो शैडो कैसी होती है? हमेशा लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, राइट. इट इज़ शॉर्टेस्ट एट द नून व्हेन द सन इज़ हाईएस्ट इन द स्काई एंड डायरेक्टली अबव आवर हेड. जब सन सबसे सर के ऊपर है और हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो क्या हो जाता है? आवर शैडो इज़ ऑलवेज स्मॉल, क्योंकि क्या हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट क्या है? दूर है, ठीक है, उसकी वजह से. When it is dark at night, no shadow can be formed unless there is a source of light. When it is dark at night, जब बहुत अंधेरा होता है, no shadow can be formed. Why? Because there is no source of light. Because there is no source of light. A torch, a spotlight or a street light is a small point of source. Hence, when the light from a torch or street light falls on the objects at night, its shadow will be clear and well defined. क्यों? क्योंकि small source of अगर light है तो इमेज कैसी होंगी, उसकी शैडो कैसी होंगी? नॉट इमेज, उसकी शैडो कैसी होंगी? इट विल बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड. अ शैडो फॉर्म्ड इन डिम लाइट विल बी ब्लर्ड एज देर इज लेस लाइट. अ शैडो फॉर्म्ड इन dim light क्या हो जाएंगे? इट विल बी ब्लर्ड एज देर इज लेस लाइट, एज देर इज लेस लाइट. इट विल बी डार्कर देन द शैडो फॉर्म ड्यूरिंग द डे. वो डार्क रहेंगी, इट विल बी डार्क बट it will be blurred, but it will not be clear, it will be blurred. ठीक है. हाँ, यहाँ पे ये देखना आप, जैसे मॉर्निंग में है तो लेंथ कैसी है? इट्स लॉन्ग, क्योंकि वो हॉरिजॉन के पास में है सन. और यहाँ पे क्या हो जाता है? इट्स फार अवे, राइट. सो शॉर्टेस्ट होती है. एंड अगेन इन द इवनिंग इट्स लॉन्गेस्ट. Day and night. Then we are moving to the day and night. You know that the earth rotates on its axis, completing one turn every 24 hours. You know that the earth rotates itself. earth जो खुद के इसमें घूमती, जैसे यू कैन सी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो घूम रही है, राइट. यू कैन सी द डायरेक्शन. सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन. खुद के इसमें वो घूमने को हम रोटेट कहेंगे. और जब वो सन के सन के पास में से वो घूमती है अराउंड द सन, व्हेन इट मूव्स अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन का. रोटेशन माना खुद ही घूमना, खुद के आजू बाजू, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन.
and revolution is what? When moving around the sun. Now, you know that the earth rotates on its axis, north axis and south axis, completing one turn every 24 hours. क्या हो जाता है? Earth rotate होते जाती है on its axis, completing one turn every 24 hours. One rotation of 24 hours constitutes a day. At the same time, the earth also revolves around the sun. At the same time, the earth also revolves around the sun. During rotation, one side of the earth faces the sun while the other half faces away. During rotation, one side of the earth faces the sun while the other half faces away. The side of the earth facing the sun experiences the heat. जो सन के सामने है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो हीट एक्सपीरियंस करेगा. दैट इज़ द लाइट ऑफ द डे टाइम. And we can see world around us as it is lit up by the sun in the sky. And while one side of the earth is being lit by the sun, the other side experiences the darkness of the night. It experiences the darkness of the night. So ये कैसे ये रिवॉल्व होती है. जो जो सन के सामने जो एरिया आता है that will be day, it will be heat, it will be warm. Yes, and जो एरिया जहाँ पे अभी सन नहीं ये हो रहा है that will be how it will be? It will be dark, it will be the night there. ठीक है. Now we are going to move towards a very interesting part, that is eclipse. इसको बहुत ध्यान से समझना है हमें. Just as the sun illuminates the earth, earth को क्या कर देता है? sun lighten up कर देता है, brighten up कर देता है. The earth and the moon are the solid opaque objects. The earth and the moon are the solid opaque objects, right? सन भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, मून भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट कैनॉट पास थ्रू इट. द लाइट कैनॉट पास थ्रू इट. व्हेन दे ब्लॉक द सन्स लाइट दे कास्ट शैडोज. व्हेन दे ब्लॉक द sun's light they cast shadow. The natural shadows cause occurrences called eclipses. These natural shadows causes occurrences called eclipses. अब इसको मार्क कीजिए. What do you mean by eclipse? The phenomena in which the shadow of the heavenly body in the space blocks the view of another body in space is called as eclipse. ठीक है. इसे definition को हमें learn करना है. I'll read it once again. The earth and the moon are solid objects. When they block sun's light, they cast shadow. When they block the sun's light, they cast shadow. उनकी shadow create हो जाती है. These natural shadows causes occurrences called eclipses. These natural shadows cause occurrences called eclipses. There are two types of eclipses on earth. The eclipse of the moon and the eclipse of the sun. The eclipse of the moon and the eclipse of the sun. So we are going to see the first part, that is lunar eclipse. Lunar eclipse. ठीक है. इक्लिप्स का समझ में आया क्या है? परछाई फॉर्म होना कहाँ पर? स्पेस में. कहाँ पर परछाई फॉर्म होना? स्पेस में. किसकी वजह से होगा? अब एक सीरियस सी बात है. उस पर एक है लूनार इक्लिप्स और एक सोलर इक्लिप्स. इसमें तीन चीज़ें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? इट विल बी सन, क्योंकि वो लाइट देता है, राइट. तो अगर नेक्स्ट आएगा अर्थ और थर्ड आएगा मून. फर्स्ट आएगा सन, सेकंड आएगा अर्थ, थर्ड आएगा मून. सो लेट्स फर्स्ट सी लूनार इक्लिप्स. लूनार माना मून इक्लिप्स. द मून ऑर्बिट्स द अर्थ वाइल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जैसे अपनी अर्थ मूव होती है ना, रिवॉल्यूशन लेती है ना वो सन के अराउंड, तो क्या हो जाता है? बीच में मून भी आ जाता है. ऑन सर्टन फुल मून नाइट्स द, देखो हाँ, पूर्णिमा की रात, सर्टन फुल मून नाइट्स द अर्थ कम्स एग्जैक्टली इन बिटवीन द सन एंड द मून. क्या हो जाता है? ऑन सर्टन फुल मून नाइट्स द अर्थ कम्स एग्जैक्टली बिटवीन द सन एंड द मून. कौन आ गया? एग्जैक्टली इन बिटवीन. हाँ, इट कम्स एग्जैक्टली इन बिटवीन द सन एंड द मून. और ये कब होता है? फुल मून नाइट पे. व्हेन ऑल द थ्री हेवनली बॉडीज आर इन स्ट्रेट लाइन. हाउ आर दे? दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. द अर्थ ब्लॉक्स
द सनलाइट दैट नॉर्मली इम्यूलेट्स द मून। अब क्या हो गया, बीच में कौन आ गया, देखो ये स्ट्रेट लाइन में है, कौन कौन स्ट्रेट लाइन में है, सन, अर्थ और मून, राइट। अब बीच में कौन आ गया है, अर्थ आ गई है बीच में, राइट, अर्थ आ गई बीच में। अब क्या हो जाएगा, अर्थ इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, सो इसकी जो अर्थ की जो परछाई है, अब मून क्या बन गया, मून स्क्रीन बन गया, राइट, और सन क्या बन गया, सोर्स ऑफ लाइट बन गया। तो बीच में कौन आए हैं, अर्थ आई है। तो अर्थ की जो शैडो है, अर्थ की शैडो काय पे गिरी, मून पे गिरी, है ना। तो शैडो किसके ऊपर गिरी, मून के ऊपर गिरी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज लूनार इक्लिप्स, दैट इज कॉल्ड एज लूनार इक्लिप्स। और ये जो आई विल रीड एंड देन आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन। इंस्टेड द अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द मून, राइट। क्या हो गया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ गई, तो अर्थ की जो परछाई है, अर्थ की जो शैडो है वो काय पे गिरी, वो मून पे गिरी, है ना। किसके ऊपर शैडो गिरी है, मून के ऊपर, इसलिए उसको ल्यूनार इक्लिप्स कहते हैं, राइट। जिसके ऊपर वो शैडो गिरती है उसका नाम वो इक्लिप्स पे दिया जाता है। और यहाँ एज अ रिजल्ट द मून डज नॉट शाइन ब्राइटली दो इट इज़ अ फुल मून नाइट। अब क्या हो गया, फुल मून नाइट है तो इट शुड shine brightly, full moon night. It appears reddish in color when viewed from the earth. It appears reddish in color when viewed from the earth. जैसे हम अर्थ से हम देखते हैं तो हमारी परछाई किसके ऊपर गिरी है, मून के ऊपर गिरी है। This occurrence is called a lunar eclipse. A lunar eclipse may be total or partial. It can last for few hours. It can be total or partial. Now once again come into this. अब क्या हो रहा है, now see. ये तीनों, फर्स्ट ऑफ ऑल सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। सन का जो लाइट है वो मून पे भी गिरता है और अर्थ पे भी गिरता है, राइट। अब क्या हो गया, ये तीनों फुल मून नाइट के टाइम तीनों क्या हो गए, एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, ठीक है, सन, अर्थ और मून। अब बीच में कौन आया है, लाइट और स्क्रीन के बीच में कौन आया है, अर्थ आई हुई है, राइट। तो जो सन की जो परछाई अर्थ पे, सन ने एक्चुअली मून को लाइट देना है, राइट, लेकिन बीच में आ गई अर्थ, तो अर्थ की परछाई क्या हो जाएंगी, मून के ऊपर गिरेगी, राइट, एंड देन फॉर्म्स अ ल्यूनार इक्लिप्स, इट फॉर्म्स अ ल्यूनार इक्लिप्स, राइट। सो लूनार इक्लिप्स क्लियर हो गया आपको, यस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी सोलर इक्लिप्स।